TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نووا اسکوشیا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے متاثرین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سارا کینیڈا احسانی ہے کہ متاثرہ افراد کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام کینیڈینز ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ We are so sorry for your loss. Such a tragedy should have never occurred. Violence of any kind has no place in Canada. We stand with you and we grieve with you, and you can count on our government's full support during this incredibly painful time. کینیڈین وزیر اعظم نے RCMP اور تمام فرسٹ رسپونڈر کی بہادری اور ان کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے بغیر کسی تعطل اور ہچکچاہٹ کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ This tragedy is a painful reminder of the risks all of our first responders take to keep us safe, of the sacrifices they make every single day to protect our communities. Paramedics, doctors, nurses, firefighters, and police officers, they're always here for us. They've been stepping up through the pandemic, and yesterday in Nova Scotia, they showed that bravery. I want to take a moment to thank them all for their professionalism and their courage. ٹروڈو کا کہنا تھا کہ گن کنٹرول کے اقدامات کو مزید سخت کرنے کے لیے حکومت مزید اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں پر پابندی کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، تاہم کورونا وائرس کے سبب اس میں خلل پیدا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معمول پر واپس آنے کے بعد اس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے اس واقعے میں کم از کم 18 افراد مارے گئے ہیں، جو کینیڈا کی تاریخ کی سب سے مہلک ترین شوٹنگ ہے۔ As we know, this is very much an ongoing investigation. It's in its early stages in Nova Scotia right now, so I don't want to jump to conclusions or make characterizations about what happened until we get a full accounting from the authorities. But in regards to gun control, we took very serious commitments in the election campaign and have moved forward and are moving forward on them to ensure that we're strengthening gun control in this country. I can say that we were on the verge of introducing legislation to ban assault-style weapons across this country. It was interrupted when the pandemic caused Parliament to be suspended. But we have every intention of moving forward on that measure and potentially other measures when the Parliament returns. کینیڈا کے صوبے نووا اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے خاتون پولیس آفیسر سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مشتبہ حملہ آور مردہ پایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نووا اسکوشیا میں فائرنگ کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے جب وہ 16 کرائم سینز پر تفتیش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے نووا اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے خاتون پولیس آفیسر سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مشتبہ حملہ آور مردہ پایا گیا۔ واقعہ نووا اسکوشیا کے دارالحکومت ہیلی فیکس سے 100 کلومیٹر دور ایک قصبے میں پیش آیا، جہاں فائرنگ کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو ایک گھر کے باہر اور اندر کئی افراد کی لاشیں ملیں۔ ہلاک افراد میں ایک خاتون پولیس آفیسر بھی شامل تھی، جبکہ فائرنگ سے ایک آفیسر زخمی بھی ہوا۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ حملہ آور نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور جعلی پولیس کار میں آیا تھا، لیکن فائرنگ کے بعد دوسری کار میں فرار ہو گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق حملہ آور کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن 12 گھنٹے جاری رہا، تاہم مشتبہ حملہ آور 51 سالہ گیبریل وارٹمین مردہ پایا گیا اور حملے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ Today is a devastating day for Nova Scotia, and it will remain etched in the minds of many for years to come. What has unfolded overnight and into this morning is incomprehensible, and many families are experiencing the loss of a loved one. That includes our own RCMP family. It's with tremendous sadness that I share with you that we have lost Constable Heidi Stevenson, a 23-year veteran of the force, who was killed this morning while responding to an active shooter incident. Heidi answered the call of duty
and lost her life while protecting those. इस वाक़ये को कनाडा की तारीख का सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ वाक़या करार दिया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो नोवा स्कोशिया में होने वाली हलाकतों पर अफसुर्दा हैं और वो ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। Before we get started, I want to touch briefly on the unfolding events in Portapique, Nova Scotia. I know we've all been watching this on the news. My hearts go out to everyone affected in what is a terrible situation. I want to thank the police for their hard work and people for cooperating with authorities. नोवा स्कोशिया पुलिस का कहना है कि मुसल्लह हमलावर की शनाख्त 51 साला गैब्रियल वॉटमैन के नाम से हुई है। ताहम अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस हमले के मुहर्रिकात क्या थे। ये जानने के लिए तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका के बरक्स कनाडा में मुसल्लह वारदातों के वाक़यात बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ बंदूकों की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल से मुतालिक कवानीन भी बहुत सख्त हैं। माजी में ज़्यादा हलाकतों की वजह बनने वाले दो बड़े वाक़यात बिलतरतीब 1989 और 2019 में हुए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1600 के करीब जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1600 के करीब जा पहुंची है। सबसे ज्यादा केसेस कनाडा के सूबे क्यूबेक में सामने आए हैं, जहां मुतासरीन की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई है और हलाकतों की तादाद 877 है। ओंटारियो में मुतासरा अफराद की तादाद 10,578 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मजीद 39 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 560 हो गई है। प्रीमियर डॉकफोर्ड का कहना है कि मुस्तहिक तलबा को आईपैड और मुफ्त इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी। डॉकफोर्ड ने ऐलान करते हुए कहा कि इससे ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को सहूलत होगी। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से शहर की समाजी और मौशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और हर हफ्ते शहर को $65 मिलियन का नुकसान हो रहा है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये नुकसान बढ़कर $2.7 बिलियन तक पहुंच सकता है। अल्बर्टा में 2600 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं और वहाँ अमवात की तादाद 51 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 1625 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। सूबे में अमवात की तादाद 78 है। नोवा स्कोशिया में कोरोना वायरस से मुतालिका 9 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि सस्केचुआन में 5 नए केसेस रिकॉर्ड हुए और मैनीटोबा में मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन फोर्सेस मॉन्ट्रियल में 5 रहायशगाहों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं। सूबे के महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि केयर होम में काम करने वाले अमले के अक्सर अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के एक लॉन्ग टर्म केयर होम में कैनेडियन फौजियों को तैनात कर दिया गया है। रॉयल कैनेडियन नेवी के एक लेफ्टिनेंट कमांडर हीदर गैलब्रेथ का कहना है कि लासेल में वाक़े केयर होम में जब फौजी अहलकार दाखिल हुए तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। गैलब्रेथ कैनेडियन फौज के 100 अहलकारों के तिब्बी अमले में शामिल हैं, जिन्हें केयर होम में तैनात किया गया है। उनका कहना था कि ये सारी सूरत हाल वाकई संगीन है और हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए हमें फौज में कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्सेज मॉन्ट्रियल में 5 रिहाइश गाहों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। सूबे के महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि केयर होम में काम करने वाले अमले के अक्सर अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मॉन्ट्रियल भर में बुजुर्ग अफराद की रिहाइश गाहों में उन्हें खाना खिलाने समेत अहम खिदमात सर अंजाम देने में अमले को मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए कैनेडियन फौज को तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि क्यूबेक की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में कोरोना के फैलाव और अमले की किल्लत के बाद मरकजी हुकूमत से मदद के लिए फौज के तिब्बी अमले को भेजने का मुतालबा किया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक भर में 5 लाख लोगों को खाना फराहम करने वाले एक फूड बैंक की जानिब से कहा गया है कि उनके फूड बैंक से खाने की तलब में 50% इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
क्यूबेक के महकमा सेहत आमा की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड-19 के बायस अस्पतालों में और इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। ताहम सूबे में वबाई अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में चौथी मरतबा सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्यूबेक में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 877 हो गई है, जबकि 18,357 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 836 का इजाफा हुआ है। अस्पताल में लोगों की तादाद 1,130 से कम होकर 1,102 हो गई, जबकि आईसीयू में रखे जाने वालों की तादाद 258 से कम होकर 183 हो गई। सूबे के चंद दही इलाकों में फूड बैंक की तलब दुगनी हो गई है। अब भी ज्यादातर कारोबार बंद हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। मजीद क्यूबिकर्स फूड बैंकों की खिदमात हासिल कर रहे हैं। क्यूबेक भर में 5 लाख लोगों को खाना फराहम करने वाले एक फूड बैंक की जानिब से कहा गया है कि उनके फूड बैंक से खाने की तलब में 50% इजाफा हुआ है। फूड बैंक की जानिब से कहा गया है कि उन्हें माली मदद और एहतियात की ज़रूरत है, जबकि उन्हें रजाकारों की कमी का भी सामना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक में कोरोना वायरस के सबब एक लॉन्ग टर्म केयर होम में पहली पेशेंट अटेंडेंट हलाक हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक में कोरोना वायरस के सबब एक लॉन्ग टर्म केयर होम में पहली पेशेंट अटेंडेंट हलाक हो गई। 25 साल तक विक्टोरिया सिल्वान ने मॉन्ट्रियल के लॉन्ग टर्म केयर होम में काम किया। कभी कभी वो इतना ओवर टाइम करती थी कि वो सिर्फ काम पर ही सो जाती थी। उनके साथियों का कहना था कि मरीजों के साथ वो हमेशा मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आती थी। इसके बावजूद जब क्यूबेक के बहुत सारे लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर होम्स में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, तब भी उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई। सिल्वान सूबे की पहली पेशेंट अटेंडेंट हैं जो कोरोना वायरस के सबब हलाक हुई। ग्रेस डायरेक्ट एक्सटेंडेंट केयर सेंटर, जहां विक्टोरिया फराई सर अंजाम देती थी, वहां रिहाइश पजीर 226 में से 62 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उनके साथियों का कहना है कि उनकी हलाकत पहली हलाकत है, पर आखिरी नहीं। मजीद लोगों को भी कोरोना वायरस से खतरात लाहक हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक सिटी के पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर का कहना है कि अस्पताल की मदद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके लिए लोगों की भर्ती की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक सिटी के जेफरी हेल अस्पताल के डॉक्टर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अस्पताल में नर्सों और तिब्बी अमले की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई है, जो जल्द ही देखभाल के कामों को मुतासर कर सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि 70 के करीब स्टाफ के आइसोलेशन में चले जाने के बाद बचने वाले अरकान 16 घंटों तक काम करने पर मजबूर हैं। डॉक्टरों की जानिब से मुकामी महकमा सेहत के हुकाम को लिखे जाने वाले खत में मदद की दरख्वास्त की गई है। क्यूबेक सिटी के पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर का कहना है कि अस्पताल की मदद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके लिए लोगों की भर्ती की जा रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 24,25,840 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,66,000 हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 24,25,840 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,66,000 हो गई हैं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। स्पेन में कोरोना वायरस के अब तक 2 लाख से ज्यादा मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 21,000 हो चुकी है। इटली में कोरोना से मजमूई अमवात 23,660 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस से अब तक कुल केसेस 1,78,972 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 19,718 हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,52,894 हो गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 4,642 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,45,742 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 16,060 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 1,20,067 हो चुकी है। चीन में कोरोना से कुल हलाकतें 4,632 हो गई, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,747 हो गए। तुर्की के वजीर सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस के 86,000 केसेस की तस्दीक की है, जिसके बाद यहाँ मरीजों की तादाद चीन और कोरोना वबा से शदीद मुतासिर मुल्क ईरान से भी बढ़ गई है। तुर्की में अब तक वबा से 2,017 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,118 हो गई है, जबकि कोरोना
के कुल केसेस 82,211 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 361 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 42,853 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 97 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,362 तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुजाहिरीन ने ट्रंप टावर के सामने अलामती मैयतें रख कर अमरीकी सदर को ये बावर कराया कि उनके नाक़िस इंतज़ामात और फैसलों की वजह से हर गुज़रते दिन के साथ अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हलाकतें अमरीका में हो गईं। यहाँ मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 40,000 से भी बढ़ गई है। अमरीका में कोरोना वायरस से पहली मौत 29 फरवरी को हुई। इसके बाद 6 अप्रैल को अमरीका में हलाकतों की तादाद 10,000 हो गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया भर में अमरीका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस हैं, जिनकी तादाद 7,64,000 से ज़्यादा है। दूसरी जानिब अमरीका में स्कूल, कारोबार की बंदिश और सफरी पाबंदियों की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार भी हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के शहर ने ट्रंप टावर के सामने अलामती मैयतें रखकर बड़ा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने ट्रंप टावर के सामने अलामती मैयतें रखकर अमरीकी सदर को ये बावर कराया कि उनके नाक़िस इंतजामात और फैसलों की वजह से हर गुजरते दिन के साथ अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है, लेकिन वो अभी तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करने से कासिर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह ने कहा है कि कोरोना हमने तैयार नहीं किया, तहकीक ज़रूर करते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को नताइज भुगतने की वार्निंग दे दी है। अमरीकी सदर का कहना है कि वायरस का फैलाव अगर गलती थी तो गलती हुई है, लेकिन चीन अगर जानते बूझते हुए जिम्मेदार है तो फिर यकीनी तौर पर उसके नताइज आने चाहिए। ट्रंप ने कहा 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। सवाल करते हुए कहा क्या गलती थी जो कंट्रोल से बाहर हो गई या जानबूझकर की गई साजिश है। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. इधर चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कोई गलती नहीं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह ने कहा कि कोरोना हमने तैयार नहीं किया, तहकीक जरूर करते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चीनी सरकारी अखबार चाइना डेली ने 2018 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब की तस्वीर शाया की थी, जिसमें 1500 इकसाम के मुख्तलिफ वायरसेस के नमूने टूटी हुई सील वाले रेफ्रिजरेटर में रखे गए थे। ये वही लेबॉर्ट्री है जो कि वुहान की सी फूड मार्केट के करीब वाक़ है और ख्याल किया जा रहा है कि कोरोना वायरस इस इलाके से फैला है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।